अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। और ये स्क्रीन? यस सर। जी सर, होली शेयर। अच्छा, ठीक है। सो ये जो लास्ट लेक्चर हुआ था, मारिया ने जो डिलीवर किया था, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पोल, रियल पोल उसने डिस्कस किया था। उसका मैं उसको सिर्फ रिकैप दे रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना? रियल पोल, and this sigma can be positive or negative, and you know when it is positive तो लेफ्ट हाफ प्लेन में है, when it is negative it's in the right half plane, क्योंकि this plus makes the change, ठीक है ना? So इसका इन्वर्स लेप्लास जब आप लेते हैं तो you get the impulse response, ठीक है? और impulse response देख के आपको आइडिया हो जाता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि if sigma is positive then the impulse response is actually decaying, and whenever you see impulse response you should think of initial condition response. हम उसको impulse response कहते हैं, लेकिन actually there is some initial condition. और you also know that the unit step function, yeah, 1 of t, it's the integral of the impulse, yeah, from minus infinity to t. So which means that if you just integrate this impulse response over time you get the step response, ठीक है ना? तो step response को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको actually calculate कर दे by applying a step, और या आप impulse response को integrate कर दे. So you can see that if this decays from some value to 0, the step response will rise from the initial value to the final value. और ये time constant, और the thing which you need to remember is this sigma, which is the magnitude of the real part, इसका जो reciprocal है वो आपका time constant बन जाता है. So all the nice properties you can imagine. We'll come back to this first order system, क्योंकि अभी हम कुछ चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करूँगा. ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मारिया ने ऑलरेडी की है. द सेकंड ऑर्डर सिस्टम नॉर्मली आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, and it's always a good idea to write 1 here, even if it is not 1, you have to express, multiply and divide by a constant so that it is 1 here. Okay, so you have these constants a1, a2, and then there is another constant b0, but this is not very useful. We would like to call this constant omega n squared, and you will see the advantage of that, and express this a1 as twice zeta omega n. So this 2 is important to have as a factor, and here you would like to have a constant gain, and this omega n squared must be there. And the advantage of this representation is called standard form. Yeah, इसका फायदा ये है कि if this k is 1 for example, and then you set s to 0, huh? You set s to 0, तो अगर ये लेट से k 1 नहीं भी है तो this will disappear, omega n squared by omega n squared is 1, and you will get 1, you will get h of 0 equals k. So इसका क्या मतलब हुआ कि k आपका क्या है? वो dc gain है. क्या? dc gain. So if k is equal to 1, then the dc gain is 1. So that is what you need to keep in mind. So we will always use this form. और इस फॉर्म का फ़ायदा ये है कि अब जिस तरह a1, a2, b0 का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जो कांस्टेंट्स है ओमेगा n और जीटा, इसका क्लियर मतलब है कि दिस विल टर्न आउट टू बी द डैम्पिंग रेशो, एंड यू नो डैम्पिंग रेशो क्या होता है? दिस इज रिलेटिव डैम्पिंग, द एक्चुअल डैम्पिंग डिवाइडेड बाय ओमेगा n स्क्वायर्ड, नहीं ओमेगा n आई थिंक, या द एक्चुअल डैम्पिंग. अगर आपके पास एक्चुअल डैम्पिंग आपको पता है तो आप उसको ओमेगा n पे डिवाइड करते हैं, यू गेट द रिलेटिव डैम्पिंग. ओमेगा n इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी,
और यहाँ पे अब यही है कि चूंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, इफ़ यू टेक द इनवर्स लेप्लास, तो ये आप किसी टेबल से देख के या पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करके जो सी भी हो, आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है। नाउ डोंट फोकस टू मच ऑन दिस लेप्लास इनवर्स, क्योंकि आप टेबल से आराम से कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई वांट यू टू फोकस इज टू लिंक द टर्म्स हेयर। सो फॉर एग्जांपल ये जो ओमेगा एन स्क्वायर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो स्क्वायर के बगैर यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, सो देयर इज नो स्क्वायर हेयर। जो जीटा आपके पास आ रहा है, इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर्ड एंड देन स्क्वायर रूटेड। तो ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, and you will see this so many times, so often that it's better to remember it. Similarly ये जो exponential है, because sigma, you know sigma is zeta omega n। अच्छा, ये यहाँ से clear हो गया कि जो मैंने zeta की definition आपको बताई थी ना कि what is zeta, वो यहाँ से clear है। For example, zeta from this equation is sigma divided by omega n. What is sigma? It's the actual damping, and this is natural frequency. So zeta is damping relative to natural frequency. So अब यहाँ पे ये है कि ये जो सिग्मा है आपका, जो एक्चुअल डैम्पिंग है, एक्सपोनेंशियल में एक्चुअल डैम्पिंग आ रही है, ये ध्यान में रखें। एक्सपोनेंशियल में रिलेटिव डैम्पिंग नहीं आएगी। और जो आपके पास एक दूसरा टर्म है 1 माइनस जीटा स्क्वायर्ड एंड देन स्क्वायर रूटेड, और उसको आप ओमेगा एन से मल्टीप्लाई करें, यू गेट ओमेगा डी, एंड दैट इज द डैम्प फ्रीक्वेंसी। सो मतलब ये है कि अगर मैं इस फैक्टर को इग्नोर कर दूं, सो आई हैव द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, or you can say the undamped frequency. You can also say undamped frequency. And when you multiply this with the factor 1 minus zeta squared and then square rooted, you get the damped frequency. अब असल में ये जो दो चीज़ें हैं ना, this becomes the real part and this becomes the imaginary part of the pair of poles. क्योंकि आपको पता है कि ये standard form it will give you 2 poles, तो उसका real part sigma आएगा। Of course मैं magnitude की बात कर रहा हूँ, क्योंकि it's actually in fact it's minus sigma, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो ओमेगा डी आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी ऑल दिस ने, बल्कि यहाँ पे इसने शो किया हुआ है ना, देखो ये ओमेगा डी यहाँ पे इसने शो क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। रिमेंबर, यू मस्ट सी दिस सिस्टम एज ए पेयर ऑफ पोल्स, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओमेगा डी है, और ये जो रियल पार्ट है क्या है, सिग्मा है, मैग्नीट्यूड। So if you want to say real part, that is actually minus sigma, or omega n is the length from the origin to any one of these poles. तो अब अगर आप कोई सर्कल आप यहाँ पे बनाते हैं तो ओमेगा n उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। It's not only that, the angle here like this 45 degree, 30 degree, 17.5, even this angle has a relationship with zeta. अब zeta का फायदा ये है, अब आपको मैं यही बता रहा था कि zeta is actually, it's not only the damping ratio, zeta informs you about where the pole is located. तो zeta का आप sin inverse ले लें तो आपको जो एंगल मिल जाता है, that tells you that from the imaginary axis, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें और आप काउंटर क्लॉकवाइज जाएं, तो आपको एक लाइन मिलेगी जिस पे आपको पेयर ऑफ पोल मिल जाएंगे। तो अब ये मैं आपको ना अभी एक आराम से एक रेसिपी मिल गया, जिसमें आप ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, यू जस्ट लुक एट द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, लुक एट द कोएफिशिएंट्स, recast them in this standard form, identify omega n and zeta, और ओमेगा एन जीटा से आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेयर ऑफ पोल्स किधर है, ठीक है ना। And these 3 plots also give you a picture of how to see the impact of zeta and omega n. For example, अगर आप इन दोनों में देखें कि यहाँ पे डैम्पिंग ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें और भी कम है, तो अगर आप इसके टाइम रिस्पांस देखेंगे, टाइम रिस्पांस, इम्पल्स रिस्पांस, स्टेप रिस्पांस, तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि लेस डैम्पिंग मीन मोर ऑसिलेशंस। सो और चूँकि हमने ये चीज़ देखी थी, h of t was of this form, ये मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, minus sigma then sine of omega dt and then 1 of t, this is your h of t। तो अगर आप देखें ये जो इफेक्टर है, this reminds you that the oscillation will be ultimately
it will ultimately die out because of this decay factor. This sine omega dt just tells you that it will oscillate, and 1 of t only means that it is 0 here, and it only starts evolving after 0. Okay? So 1 of t, you know, it's only non-zero after 1, after t is equal to 0. और इन प्लॉट्स को देख के आपको क्या इंप्रेशन मिल रहा है कि जीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं जब ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ये जीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है? तो कैन समबडी टेल मी कि जब जीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये जो आपका वो है इंपल्स रिस्पांस है, इसके साथ क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू इट? डज इट गेट मोर ऑसिलेटरी और लेस ऑसिलेटरी व्हेन आई तो ऑसिलेशन जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो आपका डैम्पिंग है वो डोमिनेट कर जाती है। एंड अच्छा, जीटा इज इक्वल टू 1 के बाद इसने क्यों शो नहीं किया, बताएं? जीटा 1 पे इसने रोक दिया है, सर लाइन स्ट्रेट हो जाती है, फिर ऑसिलेशन ही हो रही। जीटा if I move with zeta is greater than 1, तो इस प्लॉट में आपके ख्याल में मैं आगे प्लॉट्स करूंगा तो उसमें कोई गलत है आपके ख्याल में? will there be anything wrong with that? सर ऑसिलेशन ज्यादा नहीं होगी नहीं, ऑसिलेशन सिरे से होगी नहीं तो ना होना आपको क्या प्रॉब्लम? मैं पूछ रहा हूँ कि ये गलत होगा या नहीं होगा अगर मैं लेट्स सपोज मैं इस तरह की कोई चीज प्लॉट कर दूं ऐसे जो जीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, will it be wrong or is there something wrong plotting it? नहीं सर, क्योंकि आपने सॉरी सर डैम्पिंग हो रही है तो ऑब्वियसली ऑसिलेशंस ना हो, तो यही मतलब होता है। नहीं, मैं वो तो मुझे पता है ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसने अगर प्लॉट नहीं किया तो आपके ख्याल में क्यों प्लॉट नहीं किया? ये इस वजह नहीं प्लॉट किया, इस वजह से नहीं प्लॉट किया कि गलत है। मतलब अगर यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है ये असल चीज़ है, आपने ये नोट करना है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सो दैट विल ऑल्सो बी अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। इसने सिर्फ प्लॉट को क्लीन रखा है ताकि ज़्यादा गंदा ना हो ना। अब अगर यहाँ पे आप सेकेंड ऑर्डर के साथ ये लिख दें अंडर डैम्प्ड, क्या तो फिर आप इसके बाद प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि फिर ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, ठीक है? दैट्स व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। अच्छा, राइट साइड पे क्या प्लॉट है? हाउ डू यू गेट दीज प्लॉट्स फ्रॉम दिस प्लॉट? क्या करना पड़ेगा मुझे? लिखा था फंक्शन यूज किया मैंने आपको। हाँ, तो मैं ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास इंपल्स रिस्पांस है, राइट साइड पे स्टेप है। हाउ डू आई गो फ्रॉम दिस टू दिस? इन प्लॉट के साथ क्या करना पड़ेगा अगर मुझे ये प्लॉट चाहिए? डेरिवेशन 1 को माइनस करेंगे। नहीं, देखो ना, ये 1 को माइनस वाली बात आप तब करेंगे इफ यू वांट टू डिराइव दिस डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन। तो आप ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एस से, क्योंकि 1 ओवर एस इज योर स्टेप इनपुट। मैं कहता हूँ यहाँ से आप इसको कैसे गेन करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि इम्पल्स रिस्पांस को आप इंटीग्रेट करते हैं सो यू गेट द स्टेप रिस्पांस, ठीक है? और स्टेप रिस्पांस को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? तो ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि फ्रॉम हेयर टू हेयर यू नीड इंटीग्रेशन एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर बैक यू नीड डिफरेंशिएशन, ठीक है? एक और चीज नोट करें कि इसने यहाँ पे ओमेगा एन टी की वैल्यूज लिखी हैं। इसकी वजह ये है कि ओमेगा एन पे ये, वरना फिर आपको बहुत सारे प्लॉट्स चाहिए ओमेगा एन की हर वैल्यू के लिए। सो यू डोंट वांट दिस टू you don't want to have too many plots, ठीक है? और ये प्लॉट्स मारिया ने भी दिखाई होंगी कि जीटा की वैल्यू जो है ना आप चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट प्लॉट्स आपको नजर आ रही है। स्टेप रिस्पांस यहाँ पे और इम्पल्स रिस्पांस यहाँ पे, और ये ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। अच्छा, अब ये जो बिकॉज वी डोंट वांट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस और ट्रांसफर फंक्शन का लेप्लास इनवर्स लेना, ये सारी चीज़ें आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते रहे हैं, सिग्नल सिस्टम में भी करते रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा गोल है वो ये है कि हम इसको रिस्पांस को ना कैरेक्टराइज करें बाय अ फ्यू नंबर्स, जिस तरह आप इसको एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं ना, कि रादर देन प्लॉटिंग द एग्जैक्ट थिंग वी जस्ट
talk about a few numbers and those numbers informs us. So for example, ये क्या है आपको याद होगा, ये मारिया ने बताया होगा, ये क्या है, MP, बताएं। ये एक सेकंड में, हमें चार्ज नहीं किया हुआ मैंने। सर हमने लास्ट जो थे वहां तक कवर किया था। हाँ क्या, आपने जो लास्ट ग्राफ दिखाए थे ना, हमने वहां तक कवर किया था लास्ट क्लास में। नहीं, उसने मुझे बताया था कि ये इसने, अच्छा ये पीक ओवरशूट नहीं किया था इसने। नहीं पीक ओवरशूट नहीं किया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इधर आ जाएं, लेट मी जस्ट गेट बैक टू दैट प्लॉट, टू दैट इक्वेशन। इन सारी इक्वेशंस में, सॉरी इक्वेशंस को ना भी देखें, इन प्लॉट्स को भी देखें। इन प्लॉट्स में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि व्हेन जीटा चेंजेस, तो एक तो ये तरीका है कि ऑसिलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ये भी चेंज हो रही है ना, ठीक है ना। सो यू हैव अ लार्जर पीक वैल्यू फॉर अ स्मॉलर जीटा एंड अ स्मॉलर पीक वैल्यू फॉर ए लार्जर जीटा, ठीक है। सिमिलरली ये जो राइज टाइम है कि 0 से कितना जल्दी राइज कर लेता है, ये भी हमें चाहिए। और फिर सेटलिंग टाइम, ठीक है ना, कि डज इट सेटल टू सम फाइनल वैल्यू। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी क्वांटिफाइड बाय दिस प्लॉट। इस प्लॉट से हमें डेफिनेशन मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, जो MP है, इसको कहते हैं ओवरशूट। क्या, पीक, P इज फॉर पीक ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब ये है कि ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। इट विल एक्सीड द फाइनल वैल्यू। ये 1 क्या है आपका फाइनल वैल्यू है। अच्छा, इसने आपके ख्याल में इसने 1 क्यों किया हुआ है यहाँ पे? 1 के अलावा कोई वैल्यू क्यों नहीं सकती? हो सकती है आपके ख्याल में 1 के अलावा? फाइनल वैल्यू 1 के अलावा हो सकती है, नहीं बताया मुझे। हो सकती है सर, हो सकती है। तो यहाँ पे इसने 1 क्यों किया हुआ है आपके ख्याल में? सर 1 से ऊपर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, वो दिखाएगा नहीं इम्पल्स। नहीं, वो नहीं है वो असल में मसला। यानी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, आप इधर जाए ना, यहाँ मैंने क्या बात की थी इधर, इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये है कि यू सी द गेन सेपरेटली। ओके, सो फॉर सिंप्लिसिटी, अब देखो ना, हमारे पास आपने अभी देखा है कि आपकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, ओवरशूट और ऑसिलेशन, ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है? जीटा और ओमेगा एन पे, इन दो पे। के पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। के के साथ उसकी जो है ना सिर्फ फाइनल वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि के इज द डीसी गेन, के इज द, अब डीसी गेन सिर्फ फाइनल वैल्यू चेंज करती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन सेट के टू 1। तो व्हेन यू सेट के टू 1 तो आपके पास फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड इफ यू सेट के टू एनी अदर वैल्यू, तो वो उस फाइनल वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी that if we this means that k is equal to 1, ठीक है। तो अगर k is equal to 2 हो जाएगा तो इस प्लॉट के साथ क्या हो जाएगा? ये पूरा प्लॉट कहाँ जाएगा? this whole plot will change to another final value which is 2। समझ आ गई बात? तो सर सिर्फ एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा लेकिन ग्राफ उसी तरह रहेगा। ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि आप पूरे प्लॉट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो कांस्टेंट विल नॉट चेंज द शेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि these properties like MP should not be defined in such a way that it depends on the final value। समझ आ गई? तो फॉर एग्जांपल इस प्लॉट को देख के तो आपको MP की क्या डेफिनेशन नजर आ रही है कि यू वुड थिंक ऑफ इट एज द मैक्सिमम वैल्यू y max माइनस क्या, माइनस ओके, -1 ना। यहाँ पे ये लग रहा है कि -1 है, लेकिन इन जनरल तो ये नहीं होगा ना। इन जनरल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? के हो जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि y max माइनस k या y फाइनल, y
y फाइनल। अब इसको मैं किस पे डिवाइड करूं ताकि मुझे एक जनरल डेफिनेशन मिल जाए? दिस शुड बी डिवाइडेड बाय y फाइनल, ठीक है? दिस विल बी माय mp. So you see mp is not as a difference but as a factor. It multiplies. तो अभी अगर मैं लेट्स से मेरे पास ये प्लॉट ऐसे होता कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना 3 होती, ठीक है, और mp लेट्स से mp की वैल्यू है 10%, क्या 10%? 10% मीन्स 0.1। तो अब ये डिस्टेंस क्या होता फिर बताएं मुझे? This distance will be 3.3. 3 times. You should see the peak overshoot as a multiplicative factor. So 0.1. So this will be 0.3. तो इसका मतलब यह है कि ये 0.3 होता और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? 3.3, ठीक है ना? तो mp को आप डिफरेंस ना देखें, डिफरेंस के तौर पे ना देखें, ठीक है? You see this as the factor. The factor mp is the factor by which the final value is multiplied. तो मैं इसको अगर यहाँ पे लिख दूँ ना कि मेरे पास फाइनल वैल्यू है fv और मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, मुझे so that is what I mean by mp. अब समझ आ गई बात? And that is why I divide this by the final value, ठीक है? Now let's get to the rise time. Rise time कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ पे 1% से, no sorry 10% से, और ये क्या है 90%. So rise time is the time it takes for the step response to go from 10% to 90%, ठीक है? ये इसलिए है कि इस स्टेज पे इसको मेजर करना इतना आसान नहीं होता। और आपके ख्याल में 90% पे इसने क्यों रखा है? Why does it not talk about the final value? मतलब 90% की जगह 100% क्यों नहीं है? सर वो ओवरशूट है इसलिए? हाँ, क्योंकि ओवरशूट के केस में तो ये बहुत टाइम लेगा ना इधर। तो अगर ये ओवरशूट ना होता तो फिर ऐसे होता, ठीक है? तो ऐसे होता तो फिर भी ये बहुत बाद में 1 पे पहुंच जाता। तो 90% इज अ कन्वीनियंट वैल्यू, ठीक है? इट टेल्स यू, इसलिए इसको फिर राइज टाइम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इट ओनली राइजेस, इट डजंट मीन, सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज द टाइम टू रीच द विसिनिटी ऑफ द न्यू सेट पॉइंट। अच्छा, न्यू सेट पॉइंट से हमारा क्या मतलब है कि ये आपकी जो फाइनल वैल्यू आपने डिमांड की है। असल में इसको ना अपने जहन में जो पिक्चर बनाना है वो ये है, वरना ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी। आपके पास जो भी कंट्रोल सिस्टम होता है ना, कंट्रोल सिस्टम मेरा मुराद पूरा सिस्टम है जिसमें कंट्रोलर भी शामिल है, प्लांट भी शामिल है और फीडबैक सिस्टम, हर चीज़ इसमें शामिल है। सो यहाँ पे मैं उसको रेफरेंस दूंगा। क्या रेफरेंस? तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आउटपुट की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाए फ्रॉम वन वैल्यू टू द नेक्स्ट। तो स्टेप देने का मतलब ये है कि आई वांट द फाइनल वैल्यू टू चेंज। तो अब वो ऐसे चेंज होगा, ऐसे, ठीक है? सो अब यहाँ पे इवन दो आप यूनिट स्टेप देते वक्त यहाँ पे 0 एज्यूम करते हैं और फाइनल को 1 करते हैं, बट दिस ओनली रिप्रेजेंट्स अ चेंज। सो in some actual situation this 0 could be for example 10 and this final could be 15, yeah? तो आपको 5 चेंज चाहिए। तो आप 10 चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इसको 0 कह देते हैं, ठीक है ना? और इस 5 को आप रिलेटिवली देखते हैं कि ओके आई थिंक ऑफ इट एज ए 1 और बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सो ए यूनिट स्टेप एज एन इनपुट just indicates that you want to change the output to a new level. ये बात समझ आ रही है? मतलब आपके रूम में एसी लगा हुआ है किसी खास टेम्परेचर पे, तो जो भी वैल्यू है आप चाहते हैं उसको आप कम या ज्यादा करें। तो ये जो कमांड आप दे रहे हैं सिस्टम को, दिस इज मॉडल्ड बाय द स्टेप इनपुट, एंड देन यू वांट टू नो कि वो जो नई वैल्यू मैंने कमांड की है वो कितने टाइम बाद आ रही है। So rise time actually quantifies that. It tries to tell you, yeah,
how long it takes to get near the new value, the new set point. ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिस विल बी रिप्रेजेंटेटिव ओनली इफ देयर इज नो ऑसिलेशन. ये अगर ऑसिलेशन ना होती तो ये आपको आइडिया दे देता. ऑसिलेशन का मतलब ये है कि व्हाट इफ दिस ऑसिलेशन इज टू मच, सो देन यू नीड अ न्यू टाइम एंड दैट इज कॉल्ड द सेटलिंग टाइम. अब व्हाई इज सेटलिंग टाइम मोर is a more faithful representation of what we are looking for. ये definition पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, the time for the transient to the decay. तो इस transient decay से क्या मुराद है हमारा? बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर ये transient खत्म, transient की वजह से टाइम ले रहा है ना, ये अगर transient ना होते तो इतना टाइम ना लेते. तो यहाँ पे आप बेसिकली एक बैंड डिफाइन कर रहे हैं, either 1% or 2% or 5%. there are 3 ways to define this. और आप कह रहे हैं कि इस बैंड में जब ये एंटर हो जाता है तो मैं उसको सेटलिंग टाइम कहूँगा. ठीक है, now settling time and true rise time, they will be close only when there are no oscillations. ठीक है, and then there is another time which is called the time to peak. so ये peak जिस टाइम पे आ रहा है उसको time to peak कहते हैं. So आपके पास अभी 3 तरीके हैं to quantify how long does it take for the new set point to be reached or new final value to be reached. एक आपके पास peak time हो गया, एक आपके पास rise time हो गया, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, settling time. इसमें से सबसे आसान ये rise time है. rise time कैसे आसान है, अब देखें, इधर देखिए. Although you have many plots here, zeta की different values के लिए आपको देखो ना, ये rise time different हो रहा है ना, कुछ में ज़्यादा time लगा. तो what we can do, we can choose a single value of zeta which is representative of all the values. तो 0 से 1 तक सब का एवरेज क्या है, 0.5. तो अगर आप इन सब को 0.5 से रिप्रेजेंट करें तो आप 0.5 के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइज टाइम. ठीक है ना, राइज टाइम मींस टू गो. अच्छा, वैसे हम इस प्लॉट को देख रहे हैं, हमने यहाँ देखना है. यहाँ पे हमें क्यों नहीं देखना, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो किसके लिए है, वो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ देखिए कि लेट से मेरे पास ये 10% है. ठीक है, और ये क्या है, 90%. तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये टाइम वेरी कर रहा है. हाँ, तो अगर मैं 0.5 को चूज करूं एज ए प्लॉट दैट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द प्लॉट्स, ये एवरेज प्लॉट है, तो उसके लिए अगर मैं ये देख लूं और ये अगर आप कैलकुलेशन आराम से कर लें किसी ग्राफ पेपर पे, सो इट विल टर्न आउट दैट द राइज टाइम इज नियरली इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन. ये ओमेगा एन पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि ये टाइम असल में आपके पास ओमेगा एन टी है. सो टू बी मोर स्पेसिफिक, what you actually have discovered is that omega n times tr, that is what you are plotting, will be nearly equal to 1.8. ये आपको नजर भी आ रहा है ना कि ये 1.8 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 2 से थोड़ा सा कम. ठीक है, सो ये आपके पास ये चीज आ गई. इट्स अ रफ एस्टिमेट, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली जीटा इज इक्वल टू 0.5 एक एवरेज वैल्यू ली है. ये तो आसान था. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द पीक टाइम? आपके हाल में पीक टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म अवेलेबल है इस प्लॉट का, कैलकुलस से आपको याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा. तो मैक्सिमम को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, you differentiate and you set it to 0. ठीक है, अच्छा, can we save this differentiation because this, मैं आपको अगर यहाँ पे इसका दिखाऊं ना, ये इसने किया भी हुआ है. अगर आप स्टेप रिस्पॉन्स का देख लें, इसको आप डिफरेंशिएट करें एंड देन यू सेट इट टू 0, ये इसने किया हुआ है. लेकिन कैन यू सेव दिस टाइम, कैन यू skip this differentiation, or in other words, do you know this y dot otherwise, ताकि आपको डिफरेंशिएट ना करना पड़े. लेट मी गिव यू द हिंट.
मैं आपको बता दिया था कि इम्पल्स रिस्पॉन्स इज ऑलरेडी द डेरिवेटिव ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। तो आप पीछे जाएं और इम्पल्स रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन देखें, ये नजर आ रहा है आपको? तो आपके ख्याल में ये क्या है? इट इज y डॉट। So why should I differentiate when I already have it? So you set this to 0. अब 1 of t, तो जाहिर बात है ये तो 0 सिर्फ टाइम्स 0 से पहले होगा, तो हम इसको नहीं देखते। ये कांस्टेंट है, इसको भी नहीं देखते। और ये आपको पता है एक्सपोनेंशियल भी इम्पल्स रिस्पॉन्स नॉन जीरो से स्टार्ट होता है, so this cannot be 0. So the only thing that can be 0 at peak time p is this thing. क्या? तो इसका क्या मतलब है कि साइन ओमेगा डी और टी की जगह मैं क्या लिख दूं? टी पी। दिस शुड इक्वल 0। तो अब बताएं कि ओमेगा डी टी पी को क्या होना चाहिए ताकि 0 हो जाए? n पाई। हाँ, n पाई। तो n की वैल्यू 0 हो सकती है? यस सर। तो फिर टीपी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पाई। देखो ना, अगर मैं यहाँ पे n पाई लिख दूं तो n पाई का मतलब ये है कि 0 भी हो सकता है, हाँ, पाई भी हो सकता है, Yes. 2 पाई भी हो सकता है। अब 0 Yes, sir. अलाउड, ये इज इट सेंसिबल वैल्यू? नो। क्योंकि ये तो इनिशियल वैल्यू है ना। मतलब ये तो इट रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स स्टार्ट एट 0। ये इस वजह से है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीक है, तो इसको हम नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। 2 पाई को भी नहीं करते क्योंकि वो दूसरा, ये असल वैल्यू है ना, क्योंकि साइन देखो ना ऐसे। तो 2 पाई विल करेस्पॉन्ड टू दिस वैल्यू व्हिच इज नॉट अ मैक्सिमम, इट्स अ मिनिमम। 0 विल करेस्पॉन्ड टू द इनिशियल वैल्यू, तो पाई विल एक्चुअली रिप्रेजेंट दिस वैल्यू, ठीक है। तो ओमेगा डी टी इज इक्वल टू पाई। ये इतनी लंबी डेरिवेशन इसने की है और एंड पे वही चीज मिल गई जो मैंने आपको बगैर डेरिवेशन के बता दी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग वॉचफुल। अब अगर आप नजर देखें तो आपको ये मैथ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो टी पी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी आपको पहले मैंने बता दिया था कि इट्स ओमेगा एन टाइम्स दिस फैक्टर, और पता नहीं इसने क्यों लिखा हुआ है, इट्स एक्चुअली पाई। तो अब आपको ये पता चल गया कि टाइम अगर आपको पता चल गया तो एम पी क्या है? MP is simply the output, the step response evaluated at this time. तो आप उसमें प्लग करें और you will get this thing, ठीक है। कैसे? ये आपके पास एक्सप्रेशन है ना, ये, ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसमें मैं क्या करूंगा? MP यहां पे क्या हो जाएगा? y of TP minus 1, ठीक है। I set this to TP. When I set this to TP, तो इसके साथ क्या हो जाएगा बताएं? Remember TP omega 0 is नहीं, -1 सर। क्योंकि this will be pi, yeah? So this will be -1 and this will be 0. यस सर। यस सर। तो अब वो माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया, so this will be equal to exponential minus sigma TP, ठीक है। और TP क्या है? TP हमने कर दिया था कि TP is क्या था, बल्कि हमने देख लिया था, ओमेगा डी टी पी, omega dTp is pi over omega d. So actually pi over omega dt. So this will be, this Tp will be pi over omega d. अच्छा, अब ओमेगा डी में भी ओमेगा एन शामिल है इसके एक्सप्रेशन में, और सिग्मा भी ओमेगा एन शामिल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में। व्हेन यू डिवाइड सिग्मा बाय ओमेगा डी, सो एंड पे आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस पाई अपनी जगह पे रह जाएगा, और न्यूमरेटर में जीटा बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस। ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट प्लगिंग दीज टू थिंग्स।
तो ये सारा करने के बाद एंड पे आपके पास एक्सप्रेशन ये आ गई जो उसने लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है, जो कि ये गड़बड़ आपको बुक में नजर नहीं आएगी, तो बुक को आप ज्यादा सीरियस ले लें। ये चूंकि इसी बुक को फॉलो कर रहा है ना, तो वहां पे जो MP सिंबल वो यूज करता है ना बुक में, MP का मतलब सिर्फ पीक ओवरशूट है, पीक। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात बताता हूं, आप इसको 10% लिखते हैं, तो अगर परसेंटेज आप नहीं लिखना तो फिर आप क्या लिखेंगे? 0.1 and 10%, they are one and the same thing and they are both called overshoot, ठीक है। ये इसको परसेंटेज ओवरशूट कहता है। तो परसेंटेज ओवरशूट को आप बेशक लिख दे PO और उसमें फिर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन से परसेंटेज ओवरशूट इज 10, फिर दोबारा मुझे परसेंटेज नहीं लिखना पड़ेगा, एंड MP इज 10%। ये दोनों में फर्क नजर आ गया आपको? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? यस सर। क्योंकि जब आप ओवरशूट कहते हैं तो उसमें आप परसेंटेज उसके साथ लिखना पड़ता है, तो ये एक मिक्सअप कर रहा है, ये बेसिकली ये ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये करना है तो फिर आप इसको PO कह दें, परसेंट ओवरशूट। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं बड़े आराम से कैलकुलेटर में, लेकिन इसको अगर आप प्लॉट करें तो इट विल लुक लाइक दिस। नाउ व्हाई डू यू थिंक इज दिस प्लॉट मोर यूजफुल देन द फार्मूला? कोई बता सकता है मुझे? मेरे पास एक तरफ एक फार्मूला है, दूसरी तरफ एक प्लॉट है, तो कौन सा ज्यादा यूजफुल है? सर प्लॉट की डिफरेंशिएशन सर नहीं करनी प्लॉट पड़ेगी। करेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेटा। नहीं, कैलकुलेटर में मेरे पास कैलकुलेटर है ना, तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सर वो फार्मूला परसेंटेज वाली फैक्टर आ जाएगा, उसमें आपको कन्वर्ट वगैरह करना, आई थिंक। देखो ना, ये अगर आपको जीटा पता हो ना, इफ दिस इज गिवन और आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कंप्यूट, तो फिर ये फार्मूले आप आराम से फार्मूला प्लग कर दे कैलकुलेटर में। बट व्हाट इफ यू आर गिवन दिस और फिर आपको जीटा कैलकुलेट करना है, तो ये आपको फार्मूला इन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत भयानक किस्म की एक्सप्रेशन आ जाएगी ना, लॉग पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? तो प्लॉट का फायदा ये था कि यू कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस एंड यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम this to this. So we prefer the plot because I can now set this as a requirement. Let's say मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका ओवरशूट 10% से ज्यादा ना हो। Overshoot should not be, so it should be less than or equal to this. मैंने ये रिक्वायरमेंट डाल दी क्या? ये तो इस प्लॉट को देख के आप क्या कहेंगे मुझे कि जीटा को क्या होना चाहिए? देख के बताएं मुझे। Let's say this is my requirement, ठीक है। So if 0.6 से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि zeta has to be larger than 0.6. Now this is not something which is easy from the formula, ठीक है। तो प्लॉट देख के आपको पता चल जाता है। अब सेटलिंग टाइम पे आ जाते हैं। सेटलिंग टाइम में as I told you, if you look at this plot, which property of the plot prevents this step response to enter this region? ये रीजन में एंटर होने के लिए ये जो आपका रीजन है ना, ये 1% है। 1% का मतलब ये है कि ये देखो ना आपकी फाइनल वैल्यू है ना, तो इस बैंड में ये भी 1% है और ये नीचे भी 1% है, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट 2%, लेकिन इट्स कस्टमरी टू से 1%। 1% मीन्स प्लस माइनस 1%, क्या? Plus minus 1%. Similarly, plus minus 2% and plus minus 5%. So what is it that is stopping the response from entering this region? The transients, yeah? तो अगर transients मुझे पता चल जाए कि transients कब खत्म हो रही है, so my settling time is easily computable by working with the transients. जिस तरह हमने TP को डिस्कवर किया था ना, by differentiating
सो टी एस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, अब ये अगर आप इसको देखें, ये इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन में इसका क्या रोल है इस पार्ट का? बाय द वे, यू कैन कंबाइन दीज टू इनटू अ सिंगल साइन, या साइन और कोसाइन, ठीक है? ओमेगा So जी oscillation. माइनस थीटा ना, और इसका फिर एक वो भी आ जाएगा, दिस पोलर फॉर्म में आपको, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस विल बी ऑसिलेटरी, लेकिन तो जो ट्रांजिएंट है वो ज्यादा डिपेंड इस फैक्टर पे करेगा कि ये कितना नीचे आ रहा है। सो वी कैन सिंपली इग्नोर दिस एंड वी अस्यूम दिस टू बी 1 फॉर सिंप्लिसिटी। हालांकि इसमें मुझे पता है कि वो एक फैक्टर आ भी जाएगा, लेकिन आप उसको you imagine zeta to be smaller than 1, so 1 minus zeta, this is nearly 1। ये वैसे ये जो अप्रोक्सीमेशंस है ना, इस पे ज़्यादा गौर इसलिए ना करें कि अगर आप ये एक्यूरेट कर भी लेंगे तो आगे पता चल जाएगा कि सिस्टम, एक्चुअल जो सिस्टम है वो कभी भी सेकंड ऑर्डर नहीं होता। द एक्चुअल सिस्टम विल बी नॉन लीनियर, इट विल हैव मोर पोल्स, मोर जीरोस। तो यहाँ पे हमारी अप्रोक्सीमेशन जितनी सिंपल हो उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा है, क्योंकि यू कैन यूज़ दैट अप्रोक्सीमेशन। सो इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस सिंगल थिंग, माइनस सिग्मा टी, और इसको आप कह दें टी एस, सेटलिंग टाइम। सो दिस शुड बी इक्वल टू नियरली 0.1 for that 1% definition, 0.01, 0.02 for that 2% definition, and 0.05 for that 5% definition। तो आपके पास सेटलिंग टाइम की 3 वैल्यूज आ सकती है। ये इसने इलस्ट्रेशन की हुई है ना 1% के लिए। आप यही कैलकुलेशन 2% के लिए भी कर सकते हैं। 0.01 का मतलब ये है कि आपका ट्रांजिएंट 1% पे आ गया है, तो इसके बाद आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और वही आपका सेटलिंग टाइम है। सो सेटलिंग टाइम के लिए 3 एक्सप्रेशंस है। दिस वन इफ यू आर यूजिंग दिस डेफिनेशन, दिस वन और दिस वन, ये आप तीनों जहन में रख दें। वैसे जो लास्ट वाला है, does this last one remind you something? और यहां पे मैं एक और चीज बता दूं, although we did this for second order systems, लेकिन आप गौर करें कि हमने सेकंड ऑर्डर में जो साइन कोसाइन है उसको तो हमने इग्नोर कर दिया ना, क्योंकि वो ऑसिलेशन सिर्फ दे रहे हैं। हमने फोकस किस चीज पे किया है? एक्सपोनेंशियल टर्म पे ना, ठीक है? अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म फर्स्ट ऑर्डर में भी होगा नहीं होगा? फर्स्ट ऑर्डर में इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा टी, ठीक है? और ये वही सिग्मा है जिसको आप 1/टाइम कांस्टेंट कह रहे थे। आई होप यू रिमेंबर दैट। इसका मतलब ये है कि यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशंस इवन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इवन फॉर दी, सिर्फ सिग्मा की मीनिंग चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिग्मा का मतलब 1/टाइम कांस्टेंट है, और सेकंड ऑर्डर के लिए सिग्मा का क्या मतलब है? जीटा ओमेगा एन। ये अदरवाइज एक्सप्रेशन सेम है। तो आपको ये 3 टाइम कांस्टेंट याद आ रहा है? अगर फर्स्ट ऑर्डर में 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू टी एस, इट मीन्स 3 टाइम कांस्टेंट्स। सो डू यू रिमेंबर दैट 3 टाइम कांस्टेंट्स आर रफली यूज्ड टू डिटेक्ट द स्टेडी स्टेट, ठीक है? And if you want to use this definition of settling time, so this is roughly 5 time constants. 5. So I hope you remember these 2 rules of thumbs. Do you have any questions so far? क्योंकि अभी हम इन तीन आइडियाज को हम यूज करेंगे for strategy, design strategy. Basically, you can summarize these 3 parameters। हमने पहले क्या देखा था? राइज टाइम, ठीक है? तो राइज टाइम के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? देन इट वाज नियरली इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। अब आप यू वांट टू स्पेसिफाई अ सिस्टम, सो आपकी स्पेसिफिकेशन इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। You would like your rise time to be smaller than something,
ठीक है। तो फिर then this should, if you want this to be a specification, you would like your rise time to be less than something. तो if you invert this तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि the denominator must be greater than or equal to. अच्छा, ये वो प्लॉट है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जीटा है, यहाँ पे MP है। सो जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 10% से ओवरशूट कम चाहिए तो यू वुड लाइक योर जीटा टू बी लार्जर देन सम वैल्यू, तो जीटा मस्ट बी लार्जर देन द वैल्यू यू गेट फ्रॉम द प्लॉट। ये लिखा भी है, रीड ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट अगर दिया हुआ है, प्लॉट में आप ओवरशूट देखें, एक्चुअल ओवरशूट चूंकि उससे आपको कम चाहिए, तो द जीटा मस्ट बी ग्रेटर देन। एंड सिमिलरली यू वुड लाइक योर सेटलिंग टाइम, ये जो हमने एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं, लेट्स से हम ये वाला स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ये वाला पहला वाला। सो स्पेसिफिकेशन शुड बी in this form that you would like your actual system to be faster than something, तो settling time should be less than or equal to that, और जब आप उसको इन्वर्ट करते हैं तो you would like your damping to be larger than। अच्छा, अब इन तीन को आप अगर आप उसमें देखिए ना, एस प्लेन में, एस प्लेन में ये जो पहला वाला पहली वाली इनइक्वालिटी है, इट टेक्स दिस फॉर्म कि ओमेगा एन, क्योंकि ओमेगा एन इज द रेडियस ऑफ सम सर्कल, तो आपका जो पेयर ऑफ पोल है, यू वुड लाइक द पेयर ऑफ पोल टू बी एनीवेयर इन दिस रीजन, नॉट हेयर। क्यों? क्योंकि दिस विल इंश्योर दैट यू गेट ए राइज टाइम, और उससे ज्यादा राइज टाइम आपको नहीं चाहिए। तो ये बात समझ आ रही है? कैन यू मैप दिस रीजन टू दिस इक्वेशन, या आपको आपके ख्याल में मुश्किल चीज है? सर सर, तो बेसिकली जितना बड़ा W1 होगा उतना बड़ा रेडियस होगा, उतना बड़ा रेडियस होगा। और आपने ये नहीं पूछा कि मैं इसको रेडियस क्यों कह रहा हूं, ठीक है। इसका ताल्लुक इस स्टैंडर्ड फॉर्म से है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ये था ना, दिस वाज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको याद है, जिस तरह क्वाड्रेटिक का फार्मूला आप सॉल्व करते थे ना, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप करते हैं ना ऐसा। सो इफ यू वर्क दैट आउट, इट हैपेंस टू बी समथिंग लाइक दिस, एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा डी स्क्वायर्ड, ठीक है। ये डिनोमिनेटर इस तरह आ जाएगा। अब इसको देख के डज इट रिमाइंड यू अबाउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? यस। देखो ना, ये आपके पास यहां पे, इसका मतलब यह है कि सर्कल, अगर आप इफ यू हैव अ सर्कल, तो उस सर्कल में आपके पास ये जो ओमेगा डी स्क्वायर्ड है ना, ये भी आप देख लें, दिस इज बेसिकली ओमेगा एन और 1 माइनस जीटा स्क्वायर्ड, ये। तो अगर आप इन दोनों को देख लें और फिर आप इसकी ज्योमेट्री देखें, तो सर्कल की एक खास बात है कि सर्कल में अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो इन दो के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली वही है जो इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है, जीटा ओमेगा एन, और आप नोट कर ले कि ओमेगा एन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इट मस्ट बी द रेडियस। और ये जीटा कोसाइन इनवर्स है ऑफ थीटा है, अगर ये थीटा है, और ये क्या है? साइन इनवर्स ऑफ थीटा है। अब आपको समझ आ गया? नहीं सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ जीटा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जीटा, दिस जीटा इज कोसाइन ऑफ थीटा एंड दिस 1 minus zeta square is sine of theta. So your basic analytical geometry will tell you that omega n must be the radius, ठीक है। और अगर अभी आपको ये डिराइव नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कोई मैथ का कोर्स नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं ना। आप सिर्फ बस अपना ये लॉजिक चलाएं कि
ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने चूज इसलिए किया है कि हमें ये एक सिंपल पिक्चर मिल जाए। देखो ना, ये सिंपलिसिटी हमारे पास आ रही है कि अब पेयर ऑफ पोल आप अगर मैं इधर रखता हूं तो उसका क्या नुकसान होगा। लेट्स से मेरा पेयर ऑफ पोल जो है ना, जो दो पोल्स मैंने इधर रख दिए, तो उसका क्या नुकसान होगा कि उसका ओमेगा एन कम हो जाएगा, ठीक है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, और उसका फिर राइज टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दैट आई विल गेट अ स्लो सिस्टम, आई विल गेट ए एंड आई वांट अ फास्टर सिस्टम। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली जीटा को हमने देख लिया था ना कि ये जो एंगल है ये क्या था, दिस एंगल, दिस वाज साइन इनवर्स जीटा। अब जीटा किस चीज को इंश्योर कर रहा है, ये देखिए, ये किस चीज को इंश्योर कर रहा है, ओवरशूट को, कि ओवरशूट ये ज्यादा नहीं करने देगा। तो अगर आपको ओवरशूट पे लिमिट डालना है, सो यू वुड लाइक योर पेयर ऑफ पोल टू बी आउटसाइड दिस रीजन। आप उसको यहां नहीं रखेंगे क्योंकि इसका ओवरशूट ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको कहां रखेंगे, आप इसको इस रीजन में रखेंगे, एनीवेयर। और ये लास्ट रिक्वायरमेंट है ये वाली, इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव अ सेटलिंग टाइम रिक्वायरमेंट, तो योर रियल पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ पोल्स शुड बी आउटसाइड दिस रीजन। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यहां नहीं रख सकते, इधर नहीं रख सकते, आप इसको इधर रखेंगे फिर। अब ये तीन रिक्वायरमेंट्स आ गई डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, अगर ये आप स्ट्रेस करते हैं कि नहीं मैं इक्वल कर लेता हूं सबको, तो कैन यू यूज सम कॉमन सेंस कि फिर इन तीनों को अचीव करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस सबको इक्वल कर देते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यू हैव 3 डिफरेंट सेट्स। नहीं हो सकता है उनका इंटरसेक्शन भी ना एम्प्टी सेट हो सकता है उसका इंटरसेक्शन ही एम्प्टी सेट हो। मतलब आप जब 3 सेट्स देखो ना, अगर आपको एग्जैक्टली वही चाहिए, लेट्स से आप इमेजिन करें सिनेरियो कि आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, ठीक है, और आपको ओमेगा एन यहां चाहिए, यहां इक्वल टू, तो इन दोनों में ये कॉम्बिनेशन बन सकती है कि वो यहां पे आ जाएगा, तो आप इसको वायलेट कर रहे होंगे, और जब आप इसको मीट कर रहे होंगे तो उसको वायलेट करोगे। तो जो इनइक्वालिटी, इसका फायदा है कि आप इन तीनों का इसने इंटरसेक्शन लिया हुआ है। डू यू एग्री दैट दिस सीम्स टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 सेट्स? ये इंटरसेक्शन क्यों है इनका? देखो ना, आप इसका इंटरसेक्शन ले ले, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और फिर इनका ले ले, तो इसमें क्या कॉमन है? देखो ना, आपने ये लाइन भी वो कर दी, रिस्पेक्ट कर दी, और आपने ये भी रिस्पेक्ट कर दिया, ये वाला। तो अब जो पेयर ऑफ पोल इधर होगा वो इसको भी मीट कर रहा होगा, और वो इसको भी मीट कर रहा होगा, और आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है वर्टिकल, इसका मतलब है कि इसको भी कर रहा होगा। सो यू कैन हैव अ सिंगल पेयर ऑफ पोल which will be satisfying all the 3 requirements. Now this may not be possible when you go for equality. अब आपने ये 3 चीजें ज़हन में रखनी है, ठीक है, और ये आगे जो एग्जाम्पल आ रहा है इससे क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास रिक्वायरमेंट्स ये है कि राइज टाइम ये होना चाहिए, ओवरशूट इससे कम होना चाहिए, और सेटलिंग टाइम इससे कम होना चाहिए। और सेटलिंग टाइम के लिए यू नीड टू चूज द परसेंटेज, जो बैंड है वो 1% है, 2% नहीं है, 5% नहीं है। अच्छा, इसमें आप इस लाइन में आपको कोई मसला नजर आ रहा है? डू यू सी अ प्रॉब्लम इन दिस लाइन? कैन यू इमेजिन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस लाइन? वो परसेंटेज, हाँ, एमपी परसेंटेज नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि एमपी परसेंटेज नहीं, अगर आप बुक पे जाते हैं नहीं, लेकिन ये इसने ठीक लिखा हुआ है।
अगर आप गौर करें ये एग्जैक्टली वही है जो, क्योंकि 10% का क्या मतलब है? 10% का क्या मतलब है? 0.1। हाँ तो ये तो ठीक है ना, यहाँ पे इसने कोई मसला नहीं किया। मसला इसने पीछे एंड में 1% है। नहीं ये 1% तो ये 1% आपको इसलिए चाहिए कि अदरवाइज आपको नहीं पता कि सेटलिंग टाइम कौन सा वाला आपको चाहिए ना। हमने सेटलिंग टाइम 3 डिफाइन किए हैं ना, समझ आ गई? यस। सेटलिंग टाइम जब आप डिफाइन करते हैं तो आपको ये बैंड डिफाइन करना पड़ता है। तो इज दिस ±1% और ±2% और ±5%, तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है? डिफॉल्ट मैटलैब में, जिस तरह मैटलैब में डिफॉल्ट 2% है, इस बुक में डिफॉल्ट ये 1% लेता है। मसला कुछ और है, ये बताएं हम। इधर देखें जरा मसला, इस लाइन में मैं आपको क्लीन करता हूँ। देयर इज अनदर इशू, देख के बताएं मुझे। डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद दिस? सर टीआर के साथ यूनिट नहीं है। हाँ तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये है कि हम टीआर के साथ भी यूनिट लिख दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम सिंबल्स को ऐसे डिफाइन करें, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि वी कैन डिफाइन द सिंबल इन सच अ वे दैट वी डोंट नीड एनी यूनिट्स। सो फिर आप टीआर, फिर आपका टाइम नहीं होगा, यू विल से दैट द राइस टाइम इज टीआर सेकंड्स। राइस टाइम इज, इसका क्या मतलब है कि टीआर खुद क्या है? जस्ट अ नंबर। तो फिर आप इसको इधर से भी हटा दें, तो कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है बताएं? Which one is more practical? इसकी वजह ये है ना कि आपको मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यूनिट्स को निकालने का क्या फायदा होता है। आपके पास हमारे अभी अगर कोई एग्जांपल हो जाए ना, नहीं इधर नहीं है, हाँ ये देखे ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखे ना ये। अब अगर आप यूनिट लगाते हैं तो एस का क्या यूनिट है? एस का, इस एस का एस आपको याद है? एस क्या है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा, या? तो सिग्मा का क्या यूनिट है? जे ओमेगा। ओमेगा क्या यूनिट है? ओमेगा का है रेडियन पर सेकंड, और सिग्मा का भी समथिंग पर सेकंड है। इसको वैसे नेपर्स कहते हैं। क्या नेपर नाम सुना आपने? हाँ, नेपर्स मतलब रेडियन और नेपर आपको डिस्टिंग्विश कर रहा है कि रेडियन में ऑसिलेशन की बात हो रही होती है और ये एटेन्यूएशन की बात होती है। सो सिग्मा चूंकि एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा ऑसिलेशन को कर रहा है, लेकिन पर सेकंड इन दोनों के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप जब यहां पे 2 लिखते हैं तो फिर 2 के साथ भी आप लिखना पड़ेगा आपको कि 2 पर सेकंड। तो आप कितनी दफा ये पर सेकंड लिखते जाएंगे? इज इट प्रैक्टिकल? नो सर। तो इसका फिर एक ही हल है कि आप इस कंट्रोल सिस्टम में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप स्टार्ट में डिक्लेयर करें। अब देखो ना, फिर ये इसका क्या करेंगे? यहाँ पे जिसने लिखा है 2t, फिर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि t का यूनिट होगा, 2 का नहीं होगा। समझ आएगी बात? सो इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द यूनिट्स। तो मैं कोई भी यूनिट नहीं लिखूंगा इस कोर्स में, ठीक है? यूनिट आप लिखेंगे टेक्स्ट में, ये सिंबल में नहीं लिखेंगे। ओके, तो आप इसको इग्नोर करें जब ये इस तरह का ये करता है, ठीक है? सो लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट नाउ। वी हैव 3 रिक्वायरमेंट्स। TR is less than 0.6, MP is less than 0.1 and TS is less than 3 at 1%, ठीक है? तो TR is less than 0.6 को मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? I want to use this relationship. तो ओमेगा n must be greater than or equal to 1.8 divided by क्या? तो इससे क्या आंसर आता है? 3. So omega n must be
ग्रेटर देन 3, तो मेरे पास एक रीजन ये आ गया। लेट्स से ये 3 है, तो द पेयर ऑफ पोल कैन बी हियर, ठीक है, सही है। ये मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि दिस होल रीजन इज अलाउड, या एंड दिस इज नॉट अलाउड। अच्छा, 10% का जब मैंने उस टाइम भी आपसे पूछा तो आपने क्या बताया था कि जीटा का क्या होना चाहिए 10% से कम रखने के लिए ओवरशूट को? कैन समबडी रिमेंबर दैट? 0.6। 0.6। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ये जो ये क्या है, साइन इनवर्स जीटा, या so this angle zeta must be greater than 0.6। अब ये जीटा नहीं है, ये साइन इनवर्स जीटा है, तो मैं साइन इनवर्स 0.6 का ले लूंगा और ये जो एंगल आ जाएगा। वैसे इसने 3 एंगल्स दिए भी थे, आपको याद है? 3 एंगल इसने यहाँ पे शो किए थे आसानी के लिए, देखो ना, ये 0.707 है, ये 0.5 है, इसके लिए एंगल 45 बनता है, इसके लिए एंगल क्या बनता है 30 डिग्री। तो 0.6 के लिए एंगल यहाँ पे बनेगा ना, इट विल बी समथिंग लाइक, अब ख्याल में क्या होना चाहिए, मे बी यू कैन टेक साइन इनवर्स ऑफ 0.6, so it will be something like 40 डिग्री। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप आराम से कर लेते, ठीक है। और सेटलिंग टाइम क्या क्या दिया हुआ इसने 3, है, तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा हैज टू बी ग्रेटर देन 4.6 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज 1.5, ठीक है। अब आपको ये 3 रीजन नजर आ रही है, ये वाली, कैन यू मेक सेंस ऑफ दिस? ये ब्लू क्या बता रहा है आपको कि आपका पोल यहां पे कहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये रेड लाइन क्या बता रहा है कि आपका जो पेयर ऑफ पोल है वो यहां नहीं होना चाहिए, वो इसके इस साइड पे होगा, इधर। और ये जो ग्रीन लाइन है ये 1.5 है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि आप अपना पोल किधर रखेंगे। अब मैं आपने मुझे यस नो आंसर बताना है। कैन आई कीप इट हियर फॉर एग्जांपल? ये किसको वायलेट करेगा? ये किसको वायलेट करेगा, किस रिक्वायरमेंट को? सर ये ब्लू वाली सर्कल ये ओमेगा एन, हाँ, ये राइस टाइम को वायलेट करेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं एक और बताता हूँ, और बाकी को नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स से मैं यहां रखता हूं, ये किसको वायलेट करेगा? सर ये उसको रेड वाली डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब कि ये ओवरशूट रिक्वायरमेंट को वायलेट करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल, नाउ आई नीड टू गिव वन लास्ट एग्जांपल, और वो ये है कि नहीं, उस तरह का एग्जांपल नहीं बन सकता, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत क्लोज है ना। सो बट यू कैन इमेजिन काउंटर एग्जांपल्स इन अदर केसेस। ये इसने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें कभी कभी आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती ना। अब हमारे पास अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट यूज करें लिनियर अलजेब्रा का ना। लिनियर अलजेब्रा में आपने एक चीज यूज की होगी, डायमेंशंस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक बात तो क्लियर होगी कि पोल को लोकेट करने के लिए आपको कितने पैरामीटर्स चाहिए? 2, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके पास 2 को चेंज करेंगे तो आप पोल्स को इधर उधर मूव कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आपके पास एक ही पैरामीटर है और वो है KA आर्मेचर। सो इफ यू कंपेयर इट विद दिस कैनोनिकल फॉर्म, तो आप देखिए कि वो मैप कर रहा है ओमेगा एन के साथ। तो इसका मतलब है कि आप KA को जब आप चेंज कर सकते हैं, द ओनली पैरामीटर दैट यू कैन एडजस्ट इज KA।
सो यू कैन ओनली चेंज ओमेगा एन। आप जीटा को चेंज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को देख के बताएं इस एक्स ट्रांसफर फंक्शन को, एंड टेल मी व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू चेंज जीटा। इसको देख के बताएं। So because it's equal to 2, वो constant के equal है। हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि इस 2 को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप अगर जीटा को करेंगे भी तो आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं, जीटा और ओमेगा एन के प्रोडक्ट को। लेकिन जब आप के ए को चेंज करेंगे तो आप किसको चेंज करेंगे? ओमेगा एन को। तो इसका मतलब है कि जीटा आपके काबू नहीं आएगा। तो इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट सेट इट इक्वल टू सम फिक्स्ड वैल्यू। तो लेट्स से अगर हमारे पास ओवरशूट हमें अलाउड ही नहीं है तो जीटा की वैल्यू फिर 1 होनी चाहिए, और फिर आप ये इक्वेशंस को सॉल्व करके द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के टू गेट यहाँ पे 1 मिनट क्या है, वी वुड लाइक। अच्छा, अब इसने यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये चीज कहाँ से आई है, ये इसके दिमाग में ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 का आइडिया कहाँ से आ गया? सोच के बताएं मुझे। सर ताकि 2 zeta omega n जो है वो 2 के इक्वल आ जाए, इसलिए इसमें omega n को 1 लिया। नहीं तो उससे क्या फायदा होगा? सर वो डिनोमिनेटर में अच्छा, वो पॉलिटिकली रिक्वायरमेंट निकल है, जाएंगे। वो तो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल, क्योंकि दिस 2 आप इसको इस 2 की इक्वल कर दें बिल्कुल, ठीक है। सो दैट विल गिव यू ओमेगा एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और के ए की वैल्यू उस हिसाब से आ जाएगी। लेकिन मैं असल में कुछ और पूछना चाह रहा था, वो मेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ देख के आपको समझ नहीं आएगा कि मैं, दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड राइट हियर, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है व्हेन ही कंपेयर्स दिस टू दिस, यहाँ पे क्या एजम्पशन है? 0.5 K is equal to omega नहीं, n वो तो आप मैचिंग बाद में करते हैं ना। इसके साथ इसने के क्यों नहीं लगाया इधर? क्या लगा सकता था ना ये? समझ आ गई? फिर के को 1 अज्यूम किया इसने। तो इसने के 1 एज्यूम किया हुआ है। के 1 क्यों एज्यूम करते हैं ये आपको पता चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट दी सर्वो मोटर सिस्टम। क्या? तो आप का जो कंट्रोल सिस्टम है ना, कंट्रोल सिस्टम का ओवरऑल पर्पस क्या होता है? यहाँ पे वो फीडबैक लूप इसके अंदर आएंगे सारे। यहाँ पे आपका रेफरेंस इनपुट होता है और यहाँ पे आपका आउटपुट होता है। तो आपने 4 गोल्स पढ़े हैं ना स्टार्ट में, कि कंट्रोल सिस्टम की गोल्स क्या हैं? स्टेबिलिटी, ट्रैकिंग, यू रिमेंबर दैट, रेगुलेशन एंड रोबस्टनेस। याद आ रहे हैं आपको? ट्रैकिंग किसको कहते हैं? यू लाइक द आउटपुट टू फॉलो द इनपुट। तो स्टेडी स्टेट में ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? दे शुड बी जब ट्रांजिएंट्स खत्म हो जाए, यू वुड लाइक द आउटपुट एंड द रेफरेंस टू बी इक्वल, या? और इसके लिए आपका डीसी गेन का 1 होना बहुत जरूरी है। सो ऑल आवर कंट्रोल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वुड लाइक टू हैव के इज इक्वल टू 1, ठीक है। फीडबैक सिस्टम की बात कर रहा हूं। गिवन प्लांट की वैल्यू के इज इक्वल टू 1 जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट, ये हम रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। डिजाइन सिंथेसिस, you would not like to have a control system which has a DC gain not equal to 1. अच्छा, अब यहाँ पे तो k is equal to 1 को जस्टिफाई करने के 2 पॉइंट्स है। एक तो ये है कि
closed loop systems, closed loop system, we'd like to have perfect tracking, लेकिन let's say मैं closed system की बात नहीं कर रहा, I am talking about a given system, given plant. तो उस केस में आपने नोट किया है कि अगर आप k से मल्टीप्लाई कर भी देना तो सिर्फ डीसी गेन चेंज होता है, ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है ना, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक ओवर शूट, पीक टाइम, दे आर नॉट इफेक्टेड. या चेक, ये आप अलजबरा देख ले, के से आपका पूरा प्लॉट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो सेटलिंग टाइम और जो है ना राइज टाइम, पीक ओवर शूट, दे आर ऑल अनइफेक्टेड बाय दिस. अब अभी तक हमने एक तो ये एज्यूम किया है कि के को हम 1 रखते हैं. एक और चीज हमने ये एज्यूम की है कि इधर कोई जीरो नहीं है, इसके साथ यहाँ पे कोई s प्लस समथिंग नहीं है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पोल भी नहीं है. ठीक है, दिस इज स्ट्रिक्टली सेकेंड ऑर्डर, नो एक्स्ट्रा पोल, नो एक्स्ट्रा जीरो. तो just to see what an extra zero can do to a system, so you just imagine a second order system. ये second order system दिया हुआ है, ठीक है, दो पोल्स है, दोनों रियल है, एक -1 पे है, दूसरा -2 पे है. और यहाँ पे इसने क्या किया है कि पोल को नीचे छड़ा और एक जीरो इसने लगा दिया 1.1 पे. कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे इसने ये 1.1 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अदरवाइज तो देखो ना, ये 2 भी इसने चेंज नहीं किया, हाँ, पोल भी चेंज नहीं किया, सिर्फ जीरो लगा दिया. तो जीरो लगाते वक्त ये 1.1 को यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी? कैन समवन गेस? 10% इंक्रीज. हाँ, वो 10% इंक्रीज है. किस चीज का इंक्रीज है? ये तो सिर्फ जीरो की लोकेशन है ना, ये तो जीरो की लोकेशन है. जो 10% इंक्रीज किस चीज में है बताएं? Basically, we do not want to change the DC gain. इसका DC gain क्या होगा? H of 0, 0, 0. तो क्या हो जाएगा इसका DC gain? 1, या? तो this 1.1 will ensure that इस दूसरे सिस्टम का DC gain भी 1 होगा, क्योंकि 0, 0, 0 में ही कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, समझ आ गई बात? हम जब भी इस तरह के सिस्टम्स कंपेयर करेंगे, वी वुड लाइक टू हैव द सेम डीसी गेन, क्योंकि वी ओनली वांट टू नो द इफेक्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा जीरो, ठीक है. अब ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन आप दोनों में कर लें, तो इन दोनों में इसको देखे और इसको देखे आपको एक खास किस्म का फर्क नजर आएगा. नोट कर ले क्या फर्क है दोनों में. पोल सेम है ना, तो क्या चेंज हुआ है? इसको हम क्या कहते हैं? जो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है, ये कांस्टेंट, ये पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जब ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं, मैं सीवीटी में पढ़ा होगा, रेजिड्यू ना. क्या रेजिड्यूज? ये रेजिड्यूज चेंज हो गए हैं ना. यहाँ पे सेम है दोनों, यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है. यहाँ पे एक कम है, दूसरा ज्यादा है, और प्लस माइनस को फिलहाल इग्नोर कर दें. तो ये नोट करें कि किसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा है राइट साइड पे, इस पोल का या इस पोल का? 2 का. हाँ, तो ये क्यों कम हुआ? ये क्यों कम हुआ है? वो भी कम हुआ है, लेकिन ये ज्यादा कम हुआ है. Can you explain this without the math? Without the math? इसको देखिए, इस फैक्टर को देखिए, ये s plus 1.1. This 1.1 means कि आपके पास एक जीरो पड़ा हुआ है सिस्टम में. क्या वो जीरो किस पोल के क्लोज है? Is it closer to this pole or to this pole? 2 का रखिएगा. नहीं, 1.1 is close to 1 -1 के
-1 के, तो उसने उस पोल को नियरली कैंसिल कर दिया। नियरली ये अगर 1.0 होता ना, क्या होता? तो ये पूरा टर्म ही उड़ जाता। कैन यू इमेजिन दैट? जी सर। फिर आपके पास सिर्फ एक पोल है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक 0 ऐड करते हैं ना अपने सिस्टम में, तो वो 0 जिस पोल के क्लोज होगा वो उसको या कैंसिल करेगा या उसको उसका इम्पैक्ट कम करेगा। दिस इज व्हाट है 0 कैन डू टू अ सिस्टम। लेकिन इस तरह से अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या प्रॉब्लम है इस रीजनिंग में? फॉर दिस रीजनिंग यू नीड टू नो द वैल्यूज। आपको ये पोल्स एज्यूम करने पड़ेंगे और इस तरह की आप बहुत सारी डिस्कशन ज्यादा नहीं कर सकते। वी वुड लाइक टू डील विद दिस जेनेरिक सिस्टम। ये जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है ना, ये वाला, ये अभी तक हमारी जितनी भी रीजनिंग है उसमें हम जीटा और ओमेगा की वैल्यू हमें ना भी पता हो ना, तो वी कैन स्टिल हैव अ यूजफुल डिस्कशन। So we would like to see the impact of an extra 0 without trying to know the value of zeta n, omega n, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना किसी खास वैल्यू या किसी खास सिस्टम के लिए लिमिटेड ना हो। ठीक है, तो आप इस पे आ जाए। फिलहाल इसको इग्नोर कर दे। लेट्स से ये नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। तो कैन यू सी कि इसने इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है? और ये ना होता तो हम इसको कैसे फॉर्म कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, स्क्वायर प्लस बताए 2 प्लस, और यहां पे क्या होगा? ये होगा। अब इसमें प्रॉब्लम है। लेट्स से इसके साथ आप लगाते हैं एक s+2 लगाते हैं। तो आपको याद होगा वो 2 हमें इधर लिखना पड़ता था फिर, ताकि डीसी गेन चेंज ना हो। डू रिमेंबर दैट? तो अब वो हम नहीं चाहते कि हम उसके बारे में, ये इस चक्कर में हम नहीं पढ़ना चाहते। तो इसका आसान हल ये है कि you add the 0 in such a way that it is s divided by something, ताकि अगर आप s = 0 कर भी दे तो you are left with 1 and you don't need to do anything। और उसका आसान हल ये है कि ये आपका ये जो ओमेगा n स्क्वायर आपको लिखने की जरूरत पड़ी है उसकी वजह भी ये है कि जब ये भी 0 हो, ये भी 0 तो इसको कैंसिल करें। तो इसका मतलब है कि इट्स अ बेटर फॉर्म टू गेट रिड ऑफ ऑल द कांस्टेंट। तो अगर आप ओमेगा n स्क्वायर पे डिवाइड करें, लेट्स से मेरे पास ये एक्स्ट्रा 0 नहीं है, एक्स्ट्रा 0 नहीं है, ठीक है, and I take this omega n squared common from both, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? These both will become 1, yeah? ये 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? I'll divide this by omega n, yeah? And this will be zeta s। सो अब मेरे पास ये एग्जैक्टली वही चीज आ गई। देखें, अब इसका फायदा ये है कि अगर इसमें मैं अभी एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करता हूं तो 0 मुझे इस फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, s डिवाइडेड बाय अल्फा जीटा ओमेगा n। अब अल्फा एक नया पैरामीटर इसमें आ गया। अगर अल्फा की वैल्यू लेट्स सपोज 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि 0 किधर होगा फिर? आपने अपना पिक्चर बनाना है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ पोल होता है उसका ये जो लेंथ है कितना है ओरिजिन से। कैन यू रिमेंबर दैट? दैट इज जीटा टाइम्स ओमेगा n। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो आपका 0 है वो इधर ही पड़ा हुआ है, इसके सेंटर पे। अब अल्फा की कोई और वैल्यू आप चूज करें। लेट्स से अल्फा की वैल्यू आप कर ले 2, क्या? तो फिर ये 0 किधर होगा? Let's say -1 है, तो then so this alpha tells you where is the 0 located. Is it away from this pair of poles on the real line, or is it near this? So this gives you a clean way of
discussing the location of the extra zero compared to the center of the complex pair of poles. ये समझ आ गई बात? और उस सेंटर को हम चूंकि सिग्मा भी कहते हैं, so you can also imagine this zero to be at minus alpha sigma. सिग्मा उसका सेंटर है और अल्फा आपने एक एक्स्ट्रा पोल वो लगा दिया, और पोल जो पेयर ऑफ पोल है उसका रियल पार्ट किधर है? माइनस सिग्मा पे है. नाउ इफ यू हैव a value of alpha that is very large, इसका क्या मतलब है कि ये जो जीरो है ये बहुत दूर है इससे, ये बहुत दूर है. तो जब जो जीरो बहुत दूर होता है उसका ट्रांजिएंट बहुत जल्दी डिके कर जाता है, and it will not change this complex pair of pole, so no effect. But if alpha is very close to 1, इसका मतलब कि ये जीरो आसपास है, तो ये इस पेयर ऑफ पोल के इफेक्ट को चेंज करेगा, so you will have a significant effect. So do you understand now the importance of alpha, कि अल्फा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी सर. अच्छा, अब इसका असल फायदा इसके बाद नजर आएगा. What if I write this as a sum of two systems? तो एक सिस्टम में जीरो नहीं होगा और दूसरे में होगा, या ठीक है? ये देखिए इधर, फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन सेट ओमेगा n to 1, क्योंकि उसका इतना रोल नहीं है, वो तो आप स्केल एक्सेस में भी चेंज कर सकते हैं. तो अब देखें ना, ये वो सिस्टम है जिसमें एक्स्ट्रा जीरो नहीं है, ये वो सिस्टम है जिसमें एक्स्ट्रा जीरो है. यहां पे एक चीज नोट कर ले, एक तो आपके पास s आ रहा है न्यूमरेटर में. इसका क्या मतलब है कि टाइम डोमेन में क्या होगा? डिफरेंशिएशन, ठीक है? और दूसरा क्या आ रहा है कि इस डिफरेंशिएटेड सिस्टम का देखो ना, यू कैन थिंक अबाउट इट एज द ओरिजिनल सिस्टम, O फॉर द ओरिजिनल, एंड द डिफरेंशिएटेड सिस्टम. और डिफरेंशिएटेड सिस्टम के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? 1 over अल्फा जीटा. इसका मतलब यह है कि स्मॉल डैम्पिंग अगर होगी तो ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और अगर अल्फा की वैल्यू कम होगी 1 से, या 1 तक, 1 के नियर होगी, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा. तो अब आप यहाँ नोट कर लें कि दिस शुड बी विजिबल इन दीज प्लॉट्स. इन प्लॉट्स को देख के बताएं मुझे कि अल्फा की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये प्लॉट ज़्यादा चेंज हुआ है, स्मॉल के लिए या लार्ज के लिए? स्मॉल. हाँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं. क्वालिटेटिवली यू से दैट द जीरो इज क्लोजर टू द पेयर ऑफ पोल, सो ये उसके रिस्पांस को चेंज करेगा. और मैथमेटिकली आप यहां देखें कि व्हेन अल्फा इज स्मॉल, दिस 1 over स्मॉल विल बी लार्ज. लेकिन इस प्लॉट में नुकसान यह है कि यहां के लिए आपको जीटा की एक वैल्यू फिक्स एज्यूम करनी पड़ेगी. यू हैव टू चूज अ फिक्स वैल्यू ऑफ जीटा, लेट्स से. तो अगर आपको ज्यादा चाहिए, जीटा की इम्पैक्ट को भी देखना है, तो फिर ये प्लॉट ना करें, आप डायरेक्टली ओवरशूट को प्लॉट करें. अब देखो ना, इसके बाद इसने ठीक किया हुआ है, ये परसेंटेज नहीं बताता ये. सो यू कैन प्लॉट MP अगेंस्ट अल्फा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा. तो आप देखिए, चूंकि जीटा डिनोमिनेटर में है, तो ये जो इसका पहली बात तो यह है कि ओवरशूट अल्फा की वैल्यू जब कम होगी तो ओवरशूट ज्यादा हो जाएगा. देखिए, ओवरशूट बढ़ जाता है, और अल्फा की वैल्यू जब ज्यादा हो तो ओवरशूट वापस अपनी जगह पे आ जाता है, फ्लैट हो जाता है. फ्लैट का मतलब यह है कि इट्स नॉट चेंजिंग विद अल्फा. लेकिन द इफेक्ट ऑफ दिस अल्फा इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन जीटा इज स्मॉल. जीटा की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना ये ज्यादा खतरनाक चेंज आएगा. देखो ना, so you will be given these plots to analyze the impact of extra zero. ये प्लॉट आपको नहीं मिलेंगे, आपको ये प्लॉट मिल जाएंगे, ठीक है? ये प्लॉट अगर मिल भी जाए तो कोई MCQ टाइप क्वेश्चन होगा. प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते. यू कैन ओनली सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद दिस प्लॉट. क्योंकि अब इस प्लॉट का क्या फायदा है कंपेयर इट टू द प्लॉट वी हैड बिफोर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये प्लॉट आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट में मैंने बताया था, इस प्लॉट को गौर से देखें. ये दिस इज ओवरशूट अगेंस्ट क्या? जीटा. और वो क्या है? ओवरशूट अगेंस्ट
अगेंस्ट जीटा एंड अल्फा की अल्फा, क्योंकि इसमें देखो ना ये अल्फा के साथ भी इसकी वेरिएशन आपको नजर आ रही है और जीटा के साथ भी नजर आ रही है. सो दिस यू विल यूज दिस प्लॉट व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्रा जीरो. ठीक है, जब जीरो नहीं होगा तो आप पिछले प्लॉट पर आएंगे. अच्छा, आप ये एक रूल बना सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा होना तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. 4 से जब आप कम करते हैं तो ये जीरो का इम्पैक्ट ज्यादा सीरियस होना शुरू हो जाता है. अच्छा, इसमें एक और चीज भी पॉसिबल है. बिकॉज यू आर एडिंग टू सिस्टम्स, द ट्रांजिएंट्स विल एम्पलीफाई. देखो ना, आपका ओरिजिनल सिस्टम है ये दिस इज डिफरेंशिएटेड सिस्टम, यू एडेड द टू. तो जो नया सिस्टम है उसका ओवरशूट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. नाउ दिस इज व्हेन दे आर एडिंग. They will be adding only when the zero is in the left half plane. अगर राइट हाफ प्लेन में होगा तो यहां पे माइनस साइन होगा, माइनस साइन. और ये भी हो सकता है कि माइनस साइन में इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, इसका कम हो. सो द रिस्पॉन्स कैन इवन स्टार्ट आउट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. ये इसको फिर अंडर शूट कहते हैं. क्या अंडर शूट? मेरे ख्याल में ये टाइम हो गया है, तो ये बाकी टॉपिक्स हम बाद में कर लेंगे. एक टॉपिक रह गया, लेकिन दूसरे सेशन को मैंने ये पोल भी पढ़ाया हुआ था. सो आर देयर एनी क्वेश्चंस सो फार? मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी.